Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Irfan Raza. Today I am going to teach you geography of class 7. This is my first topic, that is environment. In this chapter, I will explain you the meaning of environment, the types of environment and its kind, as well as you will be aware about the concept of lithosphere, hydrosphere, atmosphere, as well as biosphere, and you will also know the term what is ecosystem. So let us start the environment. The origin of environment can be taken from the French word environner. Environment का टर्म कहां से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड environner है, which means neighborhood. एनविरोनर का मतलब क्या है? नेबरहुड. नेबरहुड का मतलब कि आपके आसपास जो चीजें हैं वो एनवायरनमेंट का पार्ट है. सो ऑल योर सराउंडिंग्स आर द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट इज अ बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम. दैट मीन्स इट इज अ सिस्टम विच सपोर्ट्स द लाइफ. एनवायरनमेंट क्या है? एक सिस्टम है जो लाइफ को यानी कि आपकी जिंदगी को सपोर्ट करता है. कौन कौन सी चीजें उसमें आएंगी? नंबर 1 एयर, देन वाटर, देन फूड, देन लैंड. एज यू नो वेरी वेल दैट एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो दैट वी कैन से दैट अ बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज the environment. We can also say that environment consists of whatever we see in our surroundings. अपनी सराउंडिंग यानी अपने आसपास जिन चीजों को हम देखते हैं वो environment के अंडर में आती हैं. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग इट माइट बी स्कूल बिल्डिंग, टेबल और चेयर, इट माइट बी टेबल और चेयर ऑफ योर क्लासरूम, आपकी क्लास की हो सकती हैं. रोड्स जहां पे आप चलते हैं, रोड्स, सड़कें, गार्बेज, कूड़ा करकट जो आपके आसपास बिखरा होता है कहीं भी, वो भी जो है एनवायरनमेंट का पार्ट है. सो दैट यू कैन से दैट प्लेसेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर, all the things which surrounds us are the part of environment. Environment can be classified into 3 types. You can see that natural environment, human-made environment, as well as human environment. What is natural environment? Natural environment which is provided through the nature. For example, mountains, rivers, trees and animals. These are provided to us by nature. So these are called natural environment. Another is human-made environment. The things which are modified from natural to human-made are known as human-made environment. For example, you can see the roads are made by humans through the use of natural resources, cars, cloths, as well as books, and so many other things. What is human environment? Human environment can be classified into 2 ways. For example, early humans. Prehistoric or early humans, they were not well developed. They lived a very simple and basic ways of life. But present humans are modern humans. They developed the natural resources for their use in several modified things. For example, we have fastest means of communication. For example, railways, buses, aeroplanes, and we have also the information technology through which our communication is made more fast and fast, so that we can convey our message through internet within a few minutes. And this video is also an example of fastest means of communication.
Natural environment can be classified into two. Number one, biotic, and another is abiotic. What is biotic? Biotic, all living beings are covered under biotic natural environment. What is abiotic? All the non-livings are abiotic. Now you will know the kinds of environment. Environment are of four kinds. Environment चार तरह के होते हैं: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर as well as biosphere. We will make it clear one by one. Number one, lithosphere. This is one type of natural environment. Lithosphere consists of solid crust or hard portion of the earth. It is made up of minerals or rocks. It is found over continent or ocean floor. कॉन्टिनेंट के ऊपर जो हिस्सा आपका होता है या ओशन फ्लोर यानी समुद्र के नीचे जो उसका बेड होता है वहां का जो हिस्सा होता है वो भी इसका क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं माउंटेन्स, पहाड़, प्लेट्यूज एज वेल एज प्लेन्स। नंबर टू इज हाइड्रोस्फीयर। व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? द डोमेन ऑफ वाटर यानी पानी का जो पोर्शन होता है आपके पास वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, पानी की जितनी भी बॉडीज पाई जाती हैं आपके अर्थ पे वो सब हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। नंबर वन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशंस, सीज एटसेट्रा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज कम्स अंडर हाइड्रोस्फीयर। Number three is atmosphere. Atmosphere consists of thin layer of air. हवा की जो छोटी परत होती है वो एटमॉस्फेयर कहलाती है। Gravitational force on Earth pull it towards the Earth. And atmosphere also protects us from harmful rays. जो सूरज से harmful rays आती हैं और स्कॉर्चिंग हीट या बहुत ही ज्यादा जो गर्मी होती है उससे एटमॉस्फेयर हमको बचाता है। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर हवा का एक लेयर है, थिन लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। डस्ट यानी धूल जो आप देखते हैं एटमॉस्फेयर में, एंड वाटर वेपर, और वाटर वेपर भी होता है। नंबर फोर्थ इज बायोस्फीयर। जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है यानी जहां पे लोग रहते हैं, जिंदगी जहां पे बीतती है और एक दूसरे का इंटरेक्शन होता है, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। प्लांट एंड एनिमल किंगडम लिविंग टुगेदर इज नोन एज बायोस्फीयर। यानी प्लांट और एनिमल किंगडम, ह्यूमन बीइंग भी उसमें आते हैं, जब एक साथ जहां पे रहते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा बायोस्फीयर। नैरो जोन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का एक नैरो जोन है। लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? जहां पे लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं वो बायोस्फीयर कहलाता है। जब हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है इकोसिस्टम। अक्सर आपने सुना होगा इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम एक टाइप का सिस्टम है जिसमें हम देखते हैं कि इंटरैक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरैक्शन होता है एक दूसरे से फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ, यानी उस इन्वायरमेंट में फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो इंटरैक्शन होता है वो हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हैं माउंटेन्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई माउंटेन है, उस माउंटेन का एक अलग इकोसिस्टम हो सकता है। कैसे? उस माउंटेन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका आपस में इंटरैक्शन होगा फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ, यानी कि वहां पे जो रहने वाले जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो मरेंगे, एक दूसरे को खाएंगे, उनका एक दूसरे से इंटरैक्शन होगा
तो वो क्या है, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो इकोसिस्टम ऑफ माउंटेन्स। देन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, उसी तरह से एक बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट है, उसका इकोसिस्टम हो सकता है, वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन हो सकता है फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ। एक ग्रासलैंड हो सकता है और एक छोटा सा पॉन्ड भी हो सकता है, छोटा सा तालाब भी हो सकता है, उसका एक अलग इकोसिस्टम होगा। सो यू नो कि आपने देखा कि इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास की सराउंडिंग होती है वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। इन्वायरमेंट हमारा तभी तक सही रह सकता है जब वो इंटरेक्शन हमारा सही वे में चलता रहे। जब ह्यूमन बीइंग्स उस इंटरेक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। सो इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू पॉल्यूट अवर इन्वायरमेंट फॉर if we want to live a peaceful and healthy life, so that we should not pollute our environment. Thanks for watching. Please like, share and comment, and those who are new on my channel, subscribe my channel and press the like button, press the bell icon for more and more videos. Thanks.